امنگوں امیدوں اور خوابوں کے ساتھ پاکستان میں سال 2024 کا آغاز ہو گیا۔ مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ شہری مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کے لیے پر امید انہوں نے دعا کی کہ نیا سال نئی امیدوں، حوصلوں، کامیابیوں، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم کے خاتمے کا سال ثابت ہو۔ تلخ اور شیریں یادوں کے ساتھ پاکستان میں 2023 کا اختتام اور نئے سال 2024 کا آغاز۔ حکومت کی جانب سے فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں نئے سال کی تمام تقریبات منسوخ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج بطور قومی فوج ملک کی سلامتی اور ترقی کے مقصد میں اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ ہمیں پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی پر فخر ہے۔ پاکستان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے قابل فخر اور باعزت عوام کو نیا سال مبارک ہو۔ نیا سال بھی فلسطینی عوام کے لیے قہر ثابت۔ اسرائیلی فوج نے 2024 کے آغاز کے ساتھ ہی غزہ پر بم برسا دیے۔ مزید 150 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس شہر میں خوفناک زمینی لڑائی جاری ہے۔ نئے سال کے آغاز پر راملہ میں فلسطینیوں نے اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کو یاد کر کے احتجاج کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری سے مسجد اقصی کے سابق امام شیخ یوسف شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے مغازی پناہ گزین کیمپ میں شیخ یوسف کے گھر کو نشانہ بنایا جس میں وہ شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملے میں شیخ یوسف کے اہل خانہ زخمی بھی ہوئے۔ الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی منظوریاں مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں دائر ہونا شروع ہو گئی۔ ریٹرننگ افسروں کے فیصلے پر اپیلیں دائر کرنے کا عمل آج سے 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ ان اپیلوں پر انتخابی ٹریبیونل 10 جنوری تک فیصلہ کریں گے، جبکہ امیدوار اپنے کاغذات 12 جنوری تک واپس لے سکیں گے۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بابر ایوان نے کہا آئین کو کسی بھی الیکشن سے نہیں روکتا، یہاں لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے۔ 300 سے زائد کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ ہم ان ہتھ کنڈوں کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ڈرائیونگ لائسنس پرانی فیس کے ساتھ بنوانے کی تاریخ میں توسیع۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نئے سال کی خوشی میں پرانی فیس کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی تاریخ میں 9 جنوری تک توسیع کر رہے ہیں۔ ابھی بھی شہریوں کے پاس ٹائم ہے کہ کئی گنا زیادہ فیسوں سے بچیں اور اپنے لائسنس بنوائیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے سال کے پہلے روز ہی تیزی دیکھنے میں آئی۔ 2024 کے پہلے روز ہی اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے دوران 1567 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست اضافے کے بعد 100 انڈیکس 64,018 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر نے ٹیسٹ کے بعد ون ڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ اپنی فیملی کو زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے باوجود چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے ٹیم کو دستیاب ہوں گا۔ اگر آسٹریلوی ٹیم چاہے تو مجھے ایونٹ میں شامل کر سکتی ہے۔
पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में सदर सैयद आरिफ हसन का इस्तीफा मंजूर। साबिक आईजी पुलिस सैयद आबिद कादरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के कायम मकाम सदर बन गए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में 25 अफराद ने शिरकत की, जिनमें से 23 अरकान ने इस्तीफे की मंजूरी के हक में वोट दिया। इजलास में 14 जबकि 11 एग्जीक्यूटिव अरकान ने जूम पर शिरकत की। अदाकार कैसर पिया, सरदार कमाल, शाहिद खान और रूबी अनम की पंजाबी फिल्म ड्रामे आले का पोस्टर और बैनर्स लॉन्च कर दिए गए। गुलबर्ग के मुकामी सिनेमा में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सीनियर अदाकार खालिद अब्बास डार मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में अदाकार इफ्तिखार ठाकुर, मोहम्मद नूरुल हसन, सलीम अलबेला, गोगा पसरूरी, बबूराना, आसिफ इकबाल, शेख आबिद, शबनम मजीद, डॉक्टर मुनव्वर चांद, नदीम फजल और दीगर शरीक हुए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, कोहिनूर की जानिब से आप सबको नया साल मुबारक हो। नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ पाकिस्तान में साल 2024 का पहला सूरज तुलू हो गया। नए साल के आगाज पर मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शहरी महंगाई और बेरोजगारी में कमी के लिए पुरउम्मीद उन्होंने दुआ की कि नया साल नई उम्मीदों, हौसलों और कामयाबियों को साथ लेकर आए। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में मजालम के खात्मे का साल साबित हो। 2024 का इंतखाबी साल खुशहाली और खुशियों का वसीला बने, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हो। इससे कबल तल्ख और शीरीं यादों के साथ पाकिस्तान में साल 2023 का इख्तिताम और नए साल 2024 का आगाज हो गया। मुल्क भर में शहरियों ने कहीं सादगी के साथ तो कहीं हवाई फायरिंग और आतिशबाजी करके साल नौ को खुशामदीद कहा। हुकूमत की जानिब से फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में नए साल की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई। आतिशबाजी के इवेंट्स मुनाकिद नहीं हुए। निगरान वजीर आजम ने साल नौ की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान किया था। रात 12 बजते ही साल नौ के आगाज के साथ मुल्क भर में आतिशबाजी और जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। कराची में हवाई फायरिंग और पटाखों के साथ साथ नए साल का इस्तकबाल किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद साल नौ का जश्न मनाने साहिल समंदर पहुंची। इसके अलावा लाहौर और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी नए साल का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया। लोगों की बड़ी तादाद साल नौ का जश्न मनाने सड़कों पर निकली और हल्ला गुल्ला किया गया। कबल अज़ीम दुनिया में सबसे पहले नए साल का इस्तकबाल न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा करते हुए किया गया। इस दौरान आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से नहा गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हार्बर ब्रिज पर भी लाइट शो का एहतमाम हुआ। शहरियों की बड़ी तादाद ने आतिशबाजी को एंजॉय किया। आसमान रोशनियों से जगमगाता रहा। शहरियों पर दिलकश नजारे का सहर तारी रहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज बतौर कौमी फौज मुल्क की सलामती और तरक्की के मकसद में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमें पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतजलजल वाबस्तगी पर फख्र है। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जानिब से काबिल फख्र और बाइज्जत अवाम को नया साल मुबारक हो। कहा 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी दोनों लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की खिदमत के जज्बा हुब्बुल वतनी को तकवीयत देती हैं। यह सरजमीन बेपनाह नेमतों और बेशुमार मौके की हामिल है। बिलाशुबा हमारी अजीम कौम हमारे आबाओ अजदाद के ख्वाबों और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक तरक्की करेगी। यकीनन आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतजिर है। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक हम फलस्तीन और हिंदुस्तान के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के गयूर अवाम के साथ खड़े हैं। दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नया साल जालिम हुकूमतों से इनके मसाइल में कमी लाएगा। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में साल नौ का जश्न मनाने के लिए होने वाली हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के वाकयात 32 अफराद जख्मी हो गए। सेहराब कोट, फेडरल बी एरिया, क्लिफ्टन, ख्वाजा अजमेर नगरी, सर सैयद टाउन, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, सदर, लयारी गार्डन, सच्चल कोरंगी, औरंगी, साइट, सरजानी, मलेर,
कायदाबाद, गुलिस्तान जोहर, लियाकताबाद समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से अब तक 24 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा अजमेर नगरी और सर सैयद टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग करने वाले 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में सालिनों का जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के नतीजे में पेश आने वाले मुख्तलिफ वाकयात में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और नाजरीन, नया साल भी फलस्तीनी अवाम के लिए कहर साबित हुआ है। इसराइली फोर्सेस ने 2024 के आगाज के साथ ही गजा पर बम बरसा दिए। मजीद 150 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीनियों का साल 2023 में जहां इसराइली जारहियत का सामना रहा, वहीं नए साल के पहले रोज ही सेहूनी फोर्सेस ने गजा पर ताबड़तोड़ हमले किए। खान यूनुस शहर में खौफनाक जमीनी लड़ाई जारी। सेहूनी फोर्सेस ने रात गए मशरकी गजा के जिला जैतून में शेलिंग की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने वस्ती गजा में मगाजी कैंप के एक घर पर ड्रोन भी गिराए। बमबारी से मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम शेख यूसुफ शहीद हो गए। इसराइली हमले में शेख यूसुफ के अहले खाना जख्मी भी हुए हैं। 68 साल शेख यूसुफ 2005 से 2006 तक फलस्तीन के वजीर मजहबी उमूर भी रहे थे। इसराइली फौज के गजा के रहायशी इलाकों पर फिजाई, जमीनी और बहरी हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। नसीरत के महाजरीन कैंप में एक घर पर कार्रवाई में मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हुए। फोर्सेस ने रात गए मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, जहां फोर्सेस ने नाबलस शहर और जिनेन कैंप समेत कई इलाकों में कार्रवाइयां की। दूसरी जानिब नए साल के आगाज पर रामला में फलस्तीनियों ने इसराइली जारहियत में शहीद होने वालों को याद करके एहतजाज किया। फलस्तीनी शहरियों ने रामला में एक बड़ा बैनर तैयार किया, जिसमें गजा में शहीद होने वाले हजारों फलस्तीनियों की तस्वीर लगाई गई थी। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मंजूरियां मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होना शुरू हो गई। रिटर्निंग अफसरों के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल आज से 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे, जबकि उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मुल्क भर के इस्लाह में रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजाती नामजदगी जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करने के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर दी गई। इन फहरिस्तों में कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए जाने वालों में मुल्क की कई बड़ी सियासी शख्सियात भी शामिल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी समेत साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और PTI के मुतादिद रहनुमाओं के कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इसी तरह साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और पंजाब की साबिक वजीर यास्मिन राशिद अख्तर मेंगल, फवाद चौधरी और उनकी अहलिया हिबा फवाद, आजम सवाती, जुल्फिकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा और उनके बेटे के कागजाती नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। दूसरी जानिब नून लीग के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और सादिक संजरानी समेत दीगर के कागजाती नामजदगी मंजूर हो गए हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में बात करेंगे जस्टिस अरशद हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI के फिरदौस शमीम नकवी की अपील सुनने से इनकार कर दिया है। फिरदौस शमीम नकवी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की। फिरदौस शमीम नकवी की अपील अब जस्टिस खादिम हुसैन तनवीर पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के कागजात नामजदगी NA 236 से मुस्तरद हुए थे। दूसरी जानिब जस्टिस खान हुसैन तनियों पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PS 86 के उम्मीदवार मजहर जुनेजो की अपील पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी कर दिया है। आजाद उम्मीदवार मजहर जुनेजो के कागजात नामजदगी तायद कुनिंदा के दूसरे हल्के छोड़ने के बायस मुस्तरद हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। PTI के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। यहाँ लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए।
300 से ज्यादा कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए गए। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि हम इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर हाल में हर कीमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, यही हमारी स्ट्रेटजी थी। हर हलके से अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है, बानी पीटीआई खुद टिकट जारी करेंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आम इंतखाबात में पीटीआई के बायकाट के इम्कान को रद्द कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई का इंतखाबात के बायकाट का कोई इरादा नहीं, कुछ भी हो जाए इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने वाज़ेह किया कि टिकटों से मुतालिक मंगल और बुध को बानी पीटीआई से मुशावरत करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर करेंगे। तर्जुमान बानी पीटीआई उमैर न्यासी ने रिटर्निंग अफसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया है। अपलेटेड ट्रिब्यूनल की जानिब से उमैर न्यासी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। ट्रिब्यूनल में जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज शामिल हैं। दौरान समाअत उमैर न्यासी के वकला ट्रिब्यूनल में पेश हुए। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। उमैर न्यासी के कागजात नामजदगी हल्का NA 79 मियावाली से मुस्तरद हुए हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा से कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन नहीं मजाक है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद वीडियो पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि NS 56 और 57 के आरओ ने कल शाम 4:30 बजे मुसद्दिका कॉपियां देने का वादा किया था। मेरे वकला रात 11 बजे तक वहां बैठे रहे, लेकिन उनको कॉपियां फराहम नहीं की गई। हमारे ऊपर गलत बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया, हमें कॉपियां फराहम की जाएं। हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, हमारे वकला आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि आरओ को हिदायत दी जाए कि वो फैसले की कॉपी दें ताकि हम अपना हक ले सकें। अल्लाह की मदद और अवाम की ताकत से NS 56 और 57 में अपनी जीत का लोहा मनवाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी की जानिब से फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि हमने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल को रोकने की दरख्वास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन का तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल खिलाफ कानून है। इस केस में जेल ट्रायल का इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की सी में जेल ट्रायल किया जा रहा है। फैसल चौधरी एडवोकेट ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल की वजह से मेरे मौक्कल का भी जेल ट्रायल किया जा रहा है। हम जेल ट्रायल के लिए वहां जाते हैं तो बॉडी सर्च करते हैं, कलम तक जाने की इजाजत नहीं होती। गुज़िश्ता समाअत पर मेरी साथी वकील सुजैन जहान खान एडवोकेट को जेल इंतजामिया की जानिब से हरासा किया गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। खातून वकील को हिरासा करने पर जेल इंतजामिया को भी नोटिस जारी कर दिया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीस के साथ बनवाने की तारीख में तौसी कर दी गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नए साल की खुशी में पुरानी फीस के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तारीख में 9 जनवरी तक तौसी कर रहे हैं। 10 तारीख से नई फीसों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने मजीद कहा है कि 9 दिन के लिए मजीद रिलीफ दे रहे हैं। अभी भी शहरियों के पास टाइम है कि कई गुना ज्यादा फीसों से बचें और अपने लाइसेंस बनवाएं। उन्होंने 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे का इतलाक रोक दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बनाने बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने रात गए कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड पर प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया और 2 घंटे तक 3.7 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा ने इस मौके पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि मंसूबे के पैकेज 1 का
50% और पैकेज 2 का 38% काम मुकम्मल हो चुका है। वजीर आला पंजाब ने 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन देते हुए कहा कि एक दिन की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। मंसूबे को वक्त से कबल पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम किया जाए। उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए मट्टी सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से भत्ते लेने की शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए भत्ता माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया और मौका पर ही पुलिस को अहकाम जारी किए। मोहसिन नकवी ने बाबू साबू से सगिया तक पैकेज 2 और सगिया से न्यासी चौक तक पैकेज 1 का मुआयना किया। वजीर आला ने मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया और मंसूबे के तरफ वाली दीवारों की तामीर के काम का मुशाहिदा किया। उन्होंने साइड वॉल्स पर पत्थर के ब्लॉक्स रखने के अमल का भी जायजा लिया। वजीर आला पंजाब ने दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की और मंसूबे के एतराफ की सड़कों पर तजावुजात मिसमार करने का भी हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को टास्क दे दिया। सूबाई वुज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, CCPO, डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार हैं। मट्टी के तेल की कीमत में मामूली कमी का फैसला किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 जनवरी 2024 तक पेट्रोल और डीजल की कीमत बगैर किसी रद्द-बदल के बरकरार रखने का फैसला किया गया है। 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर ही बरकरार रहेगी। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 19 पैसे कमी, लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 11 पैसा फी लीटर इजाफा किया गया है। कीमतों में रद्दबदल के बाद मट्टी के तेल की कीमत 201 रुपए 16 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 175 रुपए 93 पैसे फी लीटर हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के पहले रोज ही तेजी देखने में आई। 2024 के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 1567 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 64,018 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। साल 2023 के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी इंडेक्स 62,451 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। 2023 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा साल साबित हुआ, जिसके आगाज के साथ इख्तिताम भी मुस्बत रुझान पर खत्म हुआ था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के पहले रोज ही तेजी देखने में आई है। 2024 के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 1567 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में जबरदस्त इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 64,018 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। साल 2023 के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी इंडेक्स में 62,451 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। 2023 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा साल साबित हुआ, जिसके आगाज के साथ इख्तिताम में भी वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में बात करेंगे आम इंतखाबात से मुतल्लक। आम इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज से अपीलें सुनेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आम इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज से अपीलें सुनेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कागजात मंजूरियां मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। आम इंतखाबात का मामला है जहां स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज से अपीलें सुनेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर सैयद उमर गर्दीजी से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، عام انتخابات کے لیے اسکروٹنی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز الیکشن اپیل ٹریبونل میں آج سے اپیلیں سن رہے ہیں، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل الیکشن اپیل ٹریبونل کاغذات منظور میں مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے یا ان کی منظوری کے خلاف اپیلیں 3 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہیں۔ الیکشن ٹریبونل اپیلوں پر 10 جنوری تک فیصلہ جاری کرے گا۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے تاحال کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے فیصلے جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ امیدواروں کو فیصلوں کی کاپیاں وصول نہ ہونے پر مشکلات کا سامنا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن ٹریبونل کے لیے نامزد ججز اپیلوں کو سنیں گے، جس میں جسٹس شکیل احمد پشاور کے لیے الیکشن ٹریبونل کے جج ہیں، جسٹس نعیم انور منگورا بینچ کے لیے الیکشن ٹریبونل کے جج مقرر ہیں، جبکہ جسٹس کامران حیات ابت آباد اور جسٹس فہیم ولی ڈی آئی خان بینچ کے لیے الیکشن ٹریبونل کے جج ہیں۔ جسٹس فضل سبحان ہائی کورٹ بنو بینچ کے لیے الیکشن ٹریبونل کے جج ہوں گے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کی جو رہنماؤں کی اپیلیں پاور آف اٹارنی کے تحت جمع کرائی جائیں گی۔ انصاف لائر فورم کا حوالے سے کہنا ہے کہ پاور آف اٹارنی کے تحت اپیلیں جمع کرا سکتے ہیں۔ پاور اٹارنی کی صورت میں خود پیشی درکار نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں بھی یہی طریقہ کار ہے۔ جسٹس رسال حسن سید لاہور ڈویژن اور دل اوکاڑا کی جنرل شفٹوں سے متعلق اعتراضات سنیں گے۔ جسٹس فاروق حیدر پنجاب سے خواتین اور اقلیتوں کے مخصوص شفٹوں کے اعتراضات سنیں گے، جبکہ جسٹس ابجد جاوید گرال فیصل آباد اور سرگودا ڈویژن کے جنرل شفٹ پر جو ہے وہ اعتراضات سنیں گے۔ اس وقت جو تحریک انصاف کی جانب سے سب سے زیادہ جو ان کے کاغذات مسترد کیے گئے اس پہ اپیلیں جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہیں، جس پہ فیصلہ آنا بھی باقی ہے۔ جی سینئر رپورٹر عمر اویس کے ڈیزیا میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین، موسم سرما کی چھٹیوں اور نئے سال کی آمد پر سیاحوں کا رش مری امڈ آیا ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی فوڈ سیفٹی ٹیمز کے ہمراہ مری پہنچ گئے۔ 42 آؤٹ لیٹس کی چیکنگ، 14 یونٹس کو جرمانے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ رہائشی ہوٹل سمیت ریسٹورنٹس کی چیکنگ کی گئی۔ سیاحوں کو معیاری خوراک فراہم نہ کرنے والے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو 3.5 لاکھ کے جرمانے عائد کیے گئے۔ جرمانے صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات اور فوڈ سیفٹی SOPs کی خلاف ورزی پر کیے گئے۔ سیاحوں کو معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے انسپیکشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سیاح کسی بھی قسم کی شکایت کے لیے فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223 پر مفت رابطہ کر سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کی قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی۔ اسسٹنٹ لینڈ واگزار کرانے کے لیے ٹالی اوانام میں کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران 1126 کنال اسٹیٹ لینڈ کو واگزار کروا لیا گیا۔ اسٹیٹ لینڈ پر قبضہ کرنے والا منشا نامی شخص فرار، متعلقہ شخص کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ضلع بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ سمیت دیگر اداروں کے افسران بھی آپریشن کا حصہ تھے۔ ANF کا منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان ANF کے مطابق 10 کارروائیوں میں 2 ٹن سے زائد منشیات برآمد کی گئی ہیں۔ خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر بحرین جانے والے مسافر سے 1.5 کلو آئس برآمد کی گئی۔ جناح ایئرپورٹ کے قریب کوریئر آفس میں دبئی کے لیے بک کیے گئے پارسل سے 100 گرام چرس، کلا عبداللہ کے علاقے مزئی اڈا سے 1460 کلو چرس اور 215 کلو ہیروئن، پشین سے 510 کلو چرس برآمد کی گئی۔ چمن کے علاقے ٹوبہ اچک زئی سے 335.6 کلو چرس، خیبر سے 4 مختلف کارروائیوں میں 68.4 کلو چرس برآمد کی گئی۔ اس کے علاوہ پشین کے علاقے کلی عالم خان سے 180 کلو چرس، چارگی کے پہاڑی علاقے سے 17 کلو کرسٹل ہیروئن، خیبر کے علاقے کھماڑی مارکیٹ سے منشیات بنانے والی فیکٹری سے 6 کلو ہیروئن، ترنول پھاٹک اسلام آباد کے قریب گاڑی سے 4.8 کلو چرس برآمد کی گئی۔ میاں بیوی 4 بچوں سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح داچل اور اس کے مضافاتی علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بجلی کی بار بار بندش سے کاروبار تباہ، جبکہ دھند کی وجہ سے
ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हो रही मजीद है। जानते हैं दाजल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम चौधरी की इस रिपोर्ट में। दाजल और दाजल के मज़ाफ़ाती इलाकों में सर्दी और धुंध अपने अरूज पर। धुंध और सर्दी की वजह से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया, जबकि बिजली की ट्रिपिंग का सिलसिला भी जारी है, जो कि गाहे बगाहे बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। जबकि हद निगाह सिफर होने की वजह से ट्रैफिक को भी शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को आगाह किया गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में किसी नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। जबकि इस मौका पर निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। इस वजह से अहले इलाका शदीद परेशान और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद असलम चौधरी। चिश्तिया में भी आम इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी जारी है। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए और कौमी असम्बली हल्का एन 162 से उम्मीदवार एहसानुल हक बाजवा भी मुहिम के हवाले से काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चिश्तिया से हमारे नुमाइंदा ताहिर हसन से। जी ताहिर, चिश्तिया में भी आम इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से कम्पेन का सिलसिला जो है वो भी जारी है। तो मेरे साथ साबका एमएनए नून लीग के पार्टी के उम्मीदवार जो है NA 162 से एहसानुल हक बाजवा साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, तो आवाम के हवाले से क्या कहते हैं? चिश्तियाँ के मसाइल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले देखा जाए तो चिश्तियाँ में सीवरेज का निज़ाम जो है वो काफ़ी दरम बरम है। तो क्या कहते हैं, चिश्तियाँ की आवाम अगर मौका देती है तो क्या तरक्की के हवाले से इकदाम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। तरक्की के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जिस वक्त मुझे 2013 में चिश्तियाँ की आवाम ने मुझे मुंतखब किया था, तो वो आपके सामने है कि 70 सालों में इस तरह का काम चिश्तियाँ शहर में नहीं हुआ था। चिश्तियाँ शहर को डेवलप करने वाला मैं हूँ। चिश्तियाँ शहर के तमाम रोड मैंने बनवाए और कारपेट बनवाए। चिश्तियाँ शहर का हॉस्पिटल मैंने अपग्रेड करवाया। थाना बी डिवीज़न में चिश्तियाँ शहर में लेके आया। 1122 में लेके आया। शहर के गेट बनवाए, सीवरेज बनवाया, सीवरेज मैंने डलवाया था। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि 5 सालों में हर मुमकिन जितना ज़्यादा काम हो सकता था वो मैंने करवाया। ये 5 साल भी अगर हमें मिल जाते, मैं तो जीत गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर गवर्नमेंट बनती तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाने थे। इन 5 सालों में 3.5 साल जो नून PTI की गवर्नमेंट रही, तो हमारे शहर में एक ईंट नहीं लगाई गई। जो मुझे 1.5 साल मौका मिला, बेशक मैं अपोजिशन में था, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा फ़ंड लेके आया। जो मैंने तकरीबन 2 अरब रुपए के फंड में लेके आया, जो मैंने अपने इलाके में छोटे छोटे काम करवाए हैं। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मैं लेके आया हूँ वो चिश्तियाँ से हारूनाबाद तक मैंने मोटरवे मंजूर करवाई है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। जैसा कि सर कैंपेन का सिलसिला जारी है, तो क्या कहते हैं, अभी तक कितने जो नए आपके पार्टी की क़यादत में लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं, उनकी तादाद क्या है? मैं समझता हूँ कि लोग सारे माहौल को समझते हैं। लोग जोक दर जोक हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि लोग हवा का रुख देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामदान किया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क तरक्की कर रहा है, पहले भी तरक्की की है और इंशाल्लाह आगे भी लेके चलेंगे। तो लोग हमारे साथ जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। हमारा मुखालफ, मैं नहीं किसी को अपना मुखालफ समझता, ना कोई मुखालफ है जो हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ सके। इंशाल्लाह हम बहुत बड़ी लीड से ये इलेक्शन जीतेंगे। बिल्कुल, जैसा कि बहुत बड़ी लीड से ये इलेक्शन जीतने का जो है वो दावा किया जा रहा है, तो उनका नए साल से शहरियों ने अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। अवाम का कहना है, उम्मीद है नया साल महंगाई में कमी और अमन-ओ-अमान कायम होगा। शहरियों का कहना था कि 2023 हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अल्लाह करे 2024 में कीमतों में कमी आए। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद अपने रिपोर्टर मोहम्मद अवैस कमर से, जो शहरियों से नए साल की आमद पर उनके तासरात मालूम कर रहे हैं। फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। ए खुदा खैर की खबरों के उजाले रखना। 2023 ख़त्म हो गया और 2024 शुरू हो गया। जैसे ही नया साल शुरू होता है, लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं नए साल से। देखते हैं इस साल लोगों की क्या उम्मीदें हैं। ओवरऑल तो ये साल काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए, जॉब हवाले से और एक तरह से कैरियर और दोस्ती शोस्ती में अच्छा रहा। काफ़ी मतलब एंजॉय किया हमने 2023 में।
اور 24 کے لیے اچھی امیدیں ہیں انشاءاللہ. ملک بھی اور ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ چیزیں اچھی جائیں اور اللہ کرے کہ امن ہو ہمارے معاشرے میں اور ہماری ذاتی زندگی میں کوئی اسٹیبلٹی اور بھی آ جائیں. 2023 بس اس ملک کے لیے اچھا نہیں گزرا. مہنگائی کا بہت زور تھا تو ہر بندہ پریشان تھا. ابھی آگے امید ہے نئی حکومت آئے گی 2024 میں. اللہ کرے 2024 ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو اور پاکستان کو ترقی اور کمرانی عطا ہو. 2023 تو اچھا ہی گزرا مطلب اس لحاظ سے, لیکن اگر مہنگائی کے لحاظ سے دیکھیں تو بالکل اچھا نہیں گزرا. تو میری دعا ہے کہ 2024 ہر بندے کو خوشیاں ملے, آپ کو ملے, سب کو, حکمران جو ہے وہ کوئی اچھا سا ہمیں ملے. 2024 کے لیے ہماری جو ہے وہ پوزیٹیو سوچ ہے کہ 2024 امید کرتے ہیں بہت اچھا ہوگا, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, یہ ابھی ہم اخیر زمانے کی طرف جا رہے ہیں. تو اخیر زمانے میں مطلب جو ہے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی. اگر ہم اپنے دلوں میں خدا کا ڈر اور خوف رکھیں اور انسانیت کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے پیار اور محبت ایک دوسرے کے لیے دکھائیں, تو 2024 بھی بڑا اچھا گزرے گا. آنے والا وقت اچھا ہوگا, لیکن اس کے لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار اور محبت اور ایک دوسرے کا احساس کریں. تو میری یہ دعا ہے آپ سب سے کہ آپ سب کے لیے کہ 2024 آپ سبوں کی زندگیوں میں ڈیر و ڈیر برکات لائے. آمین. جی بالکل, لوگ 2024 کے لیے بڑے پر امید ہیں اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ 2024 2023 سے بہتر گزرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی مسلم امہ پریشان ہے, امید کرتے ہیں یہ سال ان ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رشید کی ہدایت کے مطابق لاہور شہر کے ڈویژنل ایس پی ایس کی کاوشیں رنگ لے آئے. نیو ایئر نائٹ پر منچلے نوجوانوں کے پلان پر پانی پھیر دیا. ایس ایچ او نیو انارکلی نے ڈرون کیمرہ کی مدد سے علاقے کو مانیٹر کیا, جبکہ ناجائز اسلحہ رکھنے پر 2024 کا پہلا مقدمہ صدر ڈویژن کے تھانہ چونک اور سٹی ڈویژن کے تھانہ شفیق آباد میں درج کیا گیا. دوسری جانب منچلوں کی گرفتاری پر ڈویژنل ایس پی ایس نے ایس ایچ اوز کو شاباش دی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, آگاہ کیجیے گا. وسیم صابر سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی کی ہدایت کے مطابق لاہور شہر کے ڈویژنل ایس پیز کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں. نیو ایئر نائٹ پر منچلے نوجوانوں کے پلان پر پانی پھیر دیا گیا. ایس ایچ او نیو انارکلی نے ڈرون کیمرہ کی مدد سے علاقے کو مانیٹر کیا, جبکہ ناجائز اسلحہ رکھنے پر 2024 کا پہلا مقدمہ صدر ڈویژن کے تھانے میں درج ہوا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, نیو ایئر نائٹ کے ساتھ ساتھ 2024 سال کا شروع ہو چکا ہے اور لاہور پولیس کی جانب سے کارروائیوں کا آغاز بھی شروع کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے 2024 کی اگر بات کی جائے تو 2024 کی سب سے پہلی ایف آئی آر صدر ڈویژن کے تھانہ چونگ میں ایس ایچ او ناصر حمید نے ملزم شرافت اور سٹی ڈویژن کے ایس ایچ او تھانہ شفیق آباد میں فاروق اعظم نے فاحد کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے پر درج کی, جبکہ لاہور میں ایریل فائرنگ روکنے کے لیے ایس ایچ اوز نے مختلف فارمولے بھی استعمال کیے. جیسے ایس ایچ او نیو نارکلی کی بات کریں تو رانا محمد اختر ان کا نام ہے. انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی اور ہوائی فائرنگ کو روکنے کے لیے ڈرون کیمرے کا استعمال کیا, جس کے باعث علاقہ میں کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں پائی گئی, جبکہ چھتوں پر چڑھے منچلے نوجوان ڈرون کیمرے کو دیکھتے ہی اپنا چہرہ چھپاتے رہے اور گھروں کی چھتوں سے نیچے آ گئے. منچلے نوجوانوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی, ایس ایس پی لاہور علی رضا, ایس پی سٹی, ایس پی صدر, سول لائن, کینٹ, اقبال ٹون, ماڈل ٹون کے ایس پیز جو ہے وہ خود سرکاری گاڑیوں پر آؤٹ ہو کر ڈیوٹیاں چیک کر رہے تھے اور لاہور شہر میں جو ہے وہ لگائے گئے ناکوں پر پولیس افسران کو بریفنگ بھی دیتے رہے. دوسری جانب ایس پی ڈولفن کی اگر بات کریں تو زہیب نصر اللہ رانجھا کے حکم پر امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے ڈولفن پیرو کی گاڑیاں سڑکوں پر گشت کرتی دکھائی دی گئی. پھر اگر بات کی جائے سی ٹی او کی, تو جس طرح سے سی ٹی او کی بات کی جائے تو خواتین سے چھیڑخانی ہلا گلا ون ویلنگ روکنے کے لیے چیف ٹریفک آفیسر امارا عطر نے خواتین پر مشتمل ایک موٹر سائیکل پر دستہ تشکیل دیا تھا, جو لاہور کی سڑکوں پہ باقاعدہ خاتون موٹر سائیکلوں پر گشت کر رہی تھی, جنہوں نے نیو ایئر نائٹ پر
सैर व तफरीह करने के लिए आई खवातीन से गपशप और इजहार मोहब्बत भी की और उनको जो है वो फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए, जबकि पुलिस ने जो है वो मामूली कार्रवाइयों में मुलविस मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। जिस तरह से बात की जाए सबसे पहले सिटी डिवीजन की, तो सिटी डिवीजन पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए जो है वो बाकायदा न्यू ईयर नाइट पर गैर कानूनी असला और हवाई फायरिंग के मुर्तकिब 24 मुल्जमान को गिरफ्तार किया। वन विलिंग करने वाले 10 लड़के थे, जबकि 11 मंशियात फरोश थे और ये शराब और शबाब की महफिलें सजाई गई थी। वहां पर भी पुलिस ने छापे मारे और वहां से भी जो है वो मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से 7 किलो मंशियात बरामद की गई, इसके अलावा 71 लीटर जो है वो शराब भी बरामद की गई और शीशा फ्लेवर भी बरामद किया गया है। इसी तरह से दूसरी जो डिवीजन है, जिस तरह से मैंने बताया सदर डिवीजन, कैंट डिवीजन, इकबाल टाउन डिवीजन, वहां पर भी पुलिस ने दर्जनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर करके हवालातें भर दी हैं और वन व्हीलरों के खिलाफ जिस तरह से मैंने कहा था रात गए भी के बैरियर लगाकर सड़क के ऊपर नाकाबंदी कर कर इनको गिरफ्तार किया जाएगा और हवाई फायरिंग करने वाले मुल्जमान को भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखा दिया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बरीगुर रहमान ने नए साल के मौका पर पैगाम देते हुए कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि नया साल सबके लिए मुबारक साबित हो और पूरी दुनिया के लिए अमन और उम्मीद का पैगाम लेकर आए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इंशाअल्लाह ये साल मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन का साल साबित होगा। हमें मोहब्बतों का फ़रोग़ करना है और नफरतों को तर्क करना है। हमें साल नौ में नए अज़्म और नई उम्मीदों के साथ मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में किरदार अदा करना है। गवर्नर पंजाब ने कहा फ़लस्तीनी अवाम के लिए भी दुआ है